خاص طور سے علم ہے اس کا فائدہ انسانیت کو بنانا ہے، مقام کیا ہے قوموں کی ترقی میں، قوموں کی تاریخ میں جو اہم ترین بات ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر قوم تم جھاگ بن کے رہنا چاہو تو اڑ جاؤ گے، اگر تم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو تو زمین میں رکو گے اور تمہارا اقتدار قائم ہے۔ یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کانسیپچول لرننگ اور فکر کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں۔ ایسے اسکولس ہو ہمارے پاس جو یہ نہیں کہ بس کچھ پہاڑے رٹا دیں، ایک پر ایپل بتا دیں اور کچھ باتیں ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر کر کے اچھے 95% مارکس لا لیں، گزشتہ 5 سال کے اگر کوشچن پیپرس کو حل کر دیا جائے تو پرفیکٹ کر دیا جائے تو آج کل 10th کلاس میں بچے 90% سے زیادہ مارکس لا لیتے ہیں۔ ایسے ایجوکیشن بہت ہیں، لیکن اگر ایسے ایجوکیشن کی ابتدا کرے جس کے ذریعے سے کانسیپچول لرننگ اور فکر کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم دی جائے تو زیادہ بہتر۔ رب العالمین وانت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رفیق مدنی حفظہ اللہ کو میں جناب شکور صاحب سے گزارش دعوتی کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ تحاملی مذاہب پر مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے کئی ڈبیٹ، سمپوزیم اور تقاریر کیے ہیں۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آج کے اس موضوع پر ہم سامعین کو خطاب کریں۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے IPS انٹرنیشنل، اسلامک پبلک اسکول انٹرنیشنل جیسے ایک عظیم مقصد والا اسکول اس میں ایک حصہ بننے کا اور اس کے اندر UIRC یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر کے تحت دعوتی شعبے میں سپورٹ کرنے کا موقع ہم UIRC کی ٹیم کو عنایت فرمایا۔ میں اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسٹیج پہ تشریف فرما جناب بیرسٹر اسدالدین گوہر صاحب، آنریبل MP صاحب اور دیگر علماء کرام اور آج کے اس جلسے میں شامل بزرگوں، دوستوں اور میرے اسلامی ماؤں بہنوں، آپ سب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے IPS کے انویٹیشن پہ لبیک کہا اور یہاں اپنے قیمتی وقت کو لیا۔ علماء کرام کو اپنے بیانات کو سامنے رکھے ہیں آپ کے سامنے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں کچھ باتیں آج کے اس موضوع پر کہ آج موجودہ حالات میں مسلم امت کے سامنے جو علمی میدان میں درپیش چیلنجز ہے اس کے مطابق کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ عقیدے آپ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں مختصر چند باتوں کو تعبیر کر کے میں ایک ایسا خوشخبری اور ایک ایسا پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ سے دعاؤں کی امید رکھتا ہوں اس پریزنٹیشن کے بعد انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر خطبے میں، ہر جلسے میں
हर इज्तिमा में हम सुनते हैं कि इस्लाम में इल्म की अहमियत कैसी है। दीगर मज़ाहिब के जैसे कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जितने भी दुनिया के दीगर मज़ाहिब हैं, उन सबसे बढ़कर दीन इस्लाम में दीन की अहमियत। अगर आप देखते जाएंगे तो कुरान मजीद का सबसे पहला आयत, जो सबसे पहला लफ्ज़ जो नाज़िल हुआ, इक़रा पढ़ो, और अहादीस मुबारका में भी इल्म को फर्ज करार दिया गया है। इमाम तबरानी हदीस को लाए हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, हर मुस्लिम के ऊपर इल्म का सीखना लाज़िम है, फर्ज है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप बुखारी शरीफ में जब इल्म का बाब आता था, बाबुल इल्मी कौलल कौली वल अमली, अमल से पहले, कौल से पहले, बात करने से पहले, अमल करने से पहले इल्म को सीखो, बाबुल इल्मी पहले काम। और इससे बढ़कर इस बात की तारीफ हमें इस एग्जाम्पल में मिलता है कि जितने अंबिया और सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, उनको मौजूदात दिए गए थे, किसी को समुद्र को चाक करने का, मुर्दों को जिंदा करने का, बड़े से बड़े मौजूदात अंबिया को सलाम करे। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजूदा दिया गया, वो कुरान मजीद, दुनिया की सबसे बेहतरीन इल्म देने वाली किताब, ये मौजूदा देके भेजा है। तो इसीलिए इस उम्मत को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर उम्मा के लक़ब से नवाज दिया, क्योंकि ऐसे इल्मी मौजूदे को आने वाले क़यामत के दिन तक जितने लोग आने वाले हैं, उनके सामने पेश करने का शर्त सिर्फ इस उम्मत को ये चांस दिया गया। लेकिन इस चांस को अपनाने में, इसको हासिल करके आगे बढ़ जाने में और दुनिया की लीडरशिप को अपने पास कायम रखने में ये उम्मत बुरी तरह फेल होगी। इसकी वजह है कि जो चैलेंजेस जो इल्मी मैदान में पेश आने वाले हैं, आ रहे हैं, उससे ये उम्मत दाखिल होनी चाहिए। इस जो आज के हाल में और बाहर जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्तों और रियासत में भी जो मेरे भाई हाजिर है, कोशिश नहीं रखता वो आगे बढ़ के दुनिया के मसाइल के लिए और टेक्नोलॉजी के तरक्की के लिए इंसान को रिसर्च करने के ऊपर उभारता है। ये एक ही ऐसा कलाम है जो कुरान मजीद है, उसके बावजूद आज टेक्नोलॉजी में रिसर्च का पीछे। इसकी वजह यह है कि जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, इसका सामना हम नहीं कर सके। सेक्युलर आइडियोलॉजी वो है जो आज दुनिया में छा चुका है। जिस स्कूल में भी हम बच्चे को भेजते हैं, आज बेहतरीन से बेहतरीन उलेमा है, लोगों को दुरुस्त देते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं, भलाई की तालीम देते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक उलेमा है जो हमारे मशहूर उलेमा है, सहराबाद के नाम में बोलना नहीं चाहता हूँ, दुनिया में इल्म के साथ में दीन को इल्म को दे, क्योंकि नियत अगर हमारा ये है कि दीन इस्लाम को कायम करने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए हम दुनिया का इल्म हासिल करेंगे, उसके से भी लोगों को साइंस भी सीधे सीखेंगे कि लोगों को इस्लाम का हक मनवाए, कुरान का हक मनवाए, तो वो भी इल्म नाफे में शामिल होता है। उससे भी इंसान का दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी उसकी बन जाती है। आज सहाबा इकराम जो एक ईमान रखते थे, उनकी तालीम हकीकत में अपनी थी। इसीलिए जब जंगे बदर के मैदान में सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी फौज आगे खड़ी है, तो आपने कहा कि हम इस्राएल के जैसे जवाब नहीं देंगे, बनी इस्राएल के जैसा आप और आपके अल्लाह लड़ो, आपके साथ हम अपने जान को, अपने माल को कुर्बान कर देंगे, और आपके साथ आप भी लड़िए, आपका अल्लाह भी लड़े और हम भी आपके साथ लड़े। ये सहाबा ने दावत दिया। उसके बाद में साथ में मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अंसारी की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने भी जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको समुद्र के बीच में ले जाते, बीचों पे जहाँ पे डूबने का भी खतरा है, तो हम वहाँ तक भी आपको फॉलो करेंगे, और उसके आगे आप दुनिया के किसी किनारे तक हमको ले जाए, हम लड़ते लड़ाते वहाँ तक चले जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके आंखें हमारे इस मजबूत ईमान से, इस मजबूत मुकाबले से दुश्मनों के
खड़े हो जाए और उस फरीजे को अदा करने के लिए खड़े हो जाए जिस फरीजे का गैर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमको इस्लाम की दावत को पेश करे और उसको कबूल करे।
دیگر معزز حاضرین کرام، علماء کرام، میں سب سے پہلے IPS انٹرنیشنل مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایک بہترین اسکول قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو آج اہم بنیادی چیزوں کی طرف یہ اسکول توجہ دے گا وہ ہے البر، تقویٰ، امانہ، حکمت، عدل، قیادت اور اقامت الدین۔ الحمدللہ یہ اسکول کا احساس ہوگا جس پر اسکول قائم کیا جا رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس میں مقاصد میں کامیابی دے، اور یقیناً اس طرح کے اسکولس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے حالیہ دنوں میں حکومت ہند کی طرف سے نیشنل سیمپل سروے جو کیا جاتا ہے 2009 اور 10 کا، یہ سب سے لیٹسٹ نیشنل سیمپل سروے ہے۔ اس میں بات سامنے آئی کہ لٹریسی لیول میں خواتین میں سب سے کم جس کا موقف ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور ہمارا لٹریسی پرسنٹیج دلتوں سے، شیڈیولڈ ٹرائب سے، بیکورڈ کلاس ہندو سے، اپر کاسٹ ہندو سے اور دیگر اقلیتوں سے ہمارا کم ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اسی نیشنل سیمپل سروے میں یہ بھی کہا گیا، یعنی بات سامنے آئی کہ میٹریکولیشن یا 10ویں جماعت میں سب سے کم 10ویں جماعت پاس کرنے والے مسلمان، اور تکلیف بات یہ ہے ہم تمام کے لیے کہ دیگر قوموں کا جو SSC کا پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ ہوا، چاہے وہ بیکورڈ کلاس ہندو ہو، اپر کاسٹ ہندو ہو، دیگر اقلیتیں ہو، یا پھر SC ST کے ہمارے بھائی، اور ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ اس سے کم ہے۔ اگر ہم ہائر ایجوکیشن پر جائیں گے تو یہ حیرت انگیز اس میں نیشنل سیمپل سروے میں آیا کہ مسلمانوں میں 1.5% کا ڈکلائن ہوا، یعنی مائنس گروتھ، اور دیگر قوموں میں قریب 5 سے 9% میں اضافہ ہوا۔ تو یہ اگر ہم نیشنل سیمپل سروے کو سامنے رکھیں گے، یہ بات خود ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کو اور اسکولس کھولنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جب جہاں پر اسکولس کھول رہے ہیں تو ان کی اسکولوں میں جو تعلیمی نصاب ہے اس میں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحیح کہا بھی محترم نے کہ یہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن تمام معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے، چاہے اس کو آپ کٹ تھروٹ کہیں یا ریٹ ریس کہیں۔ یہ ایک قسم سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح کسی کو لیڈر بنا دے یا ڈاکٹر بنا دے۔ اچھی چیز ہے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، قانون کی ڈگری حاصل کرنا چاہیے، مگر ہم دیکھتے چاہیں کہ بہت سے لوگ اسکولوں میں اچھے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، مگر یا تو ان میں مورلس کا فقدان ہوتا ہے، یا پھر وہ بالکل مذہب سے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں، ہمارے کچھ معلوم ہی نہیں دین کے بارے میں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی کو مورلس نہیں معلوم، کسی کو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم، مگر ماں باپ اگر اس بات پر فخر کریں کہ نہیں میرا بچہ جو ہے 80% آیا، 90% آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 60% آتا ہے اور وہ بچپن کا نمازی ہے اور اس میں اقدار ہے، مورلس ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن لوگ کس طرح کے جرائم کر رہے ہیں۔ آج آپ بتائیے کہ دلی میں ایک 5 سال کی بچی کی عزت اٹھائی کی کون سی انسانیت؟ یہ تو حیوانیت ہے، اور یہ ایسے کام، ایسے جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ
असली तालीम बेहतरीन तरीके से की जाए, बल्कि दीन के जो अहम बेसिक तालीमात है वो भी बच्चों को बताई जाए ताकि वो एक बेहतरीन इंसान बने। और जहाँ तक असली तालीम की बात है, आज से 3 साल पहले एक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री वफद को एक डेलीगेशन को जिसमें 8 या 9 एमपीज़ थे, जिसमें मैं भी शामिल था, हमको ये यूनिवर्सिटी जो दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी जो उसका शुमार होता है अमेरिका में, ये यूनिवर्सिटी जाया गया और वहाँ पर एक आखिरी सेशन था तालीम के ऊपर। तो उसमें कई हमारे सामने डेटा को सामने दिया गया, तो उसमें ये भी डेटा सामने आया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा PhD कौन लोग करते हैं। तो उसमें करीब 20 ममालिक के नाम, और आपको जानकर अफसोस होगा कि इन 20 ममालिक में एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं, एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं। सबसे ज़्यादा जो PhD आज हासिल कर रहे सारी दुनिया में वो चाइना के लोग 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में PhD डिग्री हासिल कर। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूरोप के ममालिक है, हिंदुस्तान 20 में भी नहीं आता, उसके बाद यही चीज़ आप देखें कि आज अल्लाह ने हमारे मुस्लिम मालिकों को बेहतरीन दौलत बनावा, उनके पास बहुत दौलत है, मगर एक असली तालीम की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की हम बता कर नहीं करते कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हमारे पास है। अब सऊदी अरब में जाकर वहाँ के बादशाह ने जिद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, और यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे हमको इसकी तालीम की, जबकि अगर हम तारीख का हर बार मुकाबला करेंगे तो दुनिया में सब जितने ईजादी हुई, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, तो तमाम के तमाम हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया, और जितने वो मुस्लिम जो मुसलमान फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, तो वहीं पर वो दीन के आलिम भी थे, यानी वो मुहद्दिस थे, यानी बेहतरीन मुहद्दिस थे, बेहतरीन खाली थे, हाफिज़ कुरान के साथ ही साथ बेहतरीन फिलोसफर थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो गोल्डन इरा को उसको रिवाइव करें, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्कूल अगर इन नेक मकासद को लेकर आगे बढ़ेंगे, यकीनन न सिर्फ हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे बल्कि उनको अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं फिर से अपनी जानिब से IPS के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं अपने ख्याल है कि वो जो नेक मकसद के तहत और जो दीगर उनकी एक्टिविटी है कि दावा का नाम करना, अभियानों में जाकर दीन इस्लाम की तालीमात उनको बताना, ये भी बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इस नेक काम को कबूल करे और उनकी तरफ से फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। हदीस का इल्म हासिल किया। जनाब मोहतरम 8 साल से दावती काम अंजाम दे रहे हैं। आपने 200 से ज़्यादा तकारीर की हैं और कई दीगर मज़ाहिब के स्कॉलर से डिबेट, डायलॉग और सिम्पोजियम में भी हिस्सा लिया है और हज़ारों गैर मुस्लिमीन को खिताब फरमाया है। 2007 में औक़ाफ़ दुबई की जानिब से आपने दुबई का दौरा किया और 2012 में सऊदी अरब का दौरा किया और 2013 में हुए। अभी आप उस दौरे से तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह 13 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत सुकन देता हूँ, जनाब मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के उन्वान पर हम तमाम सामाईन को खिताब फरमाएं। जनाब सिराजुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दायित्व पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान खुसूसी
और इस जलसे में तशरीफ फरमा तमाम नौजवान भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आप तमाम लोगों को मैं इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र गुजार आता हूँ, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्लाम जैसे अजीम नियामत से नवाजा। मेरे भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, तमाम हाज़िरीन, IPS इंटरनेशनल स्कूल के इफ्तिताही तकरीबी जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जमा हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाइयों, जैसा कि इस मौके पर IPS इंटरनेशनल स्कूल इफ्तिताही मौके पर एक सेमिनार इंतजाम किया गया, वो ये है कि आज के तालीमी जमाने में मुस्लिम उम्मत को दरपेश सवालात का सामना किस तरह किया जाए। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, ये एक ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जैसा कि इंटरनेट का दुनिया है, टीवी, नेटवर्किंग, हाई स्पीड मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के जरिए से इंसान बहुत कुछ फायदा हासिल किया है, लेकिन इसी तरह हमारे समाज में बुराइयां भी फैल रहे हैं। जिस तरह आज हमारे समाज को हम गौर फिक्र करें तो आज से पहले जो इंसान 200 साल पहले किसी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज हर किस्म का टेक्नोलॉजी, ये आराम की जिंदगी रहने के बावजूद इंसान नाशुक्र और जो है इसको अमन नहीं रहा है। मेरे भाई, जैसा कि आज इंसान मछली ना होते हुए भी मछली से भी ज्यादा समुद्र में तीर सक रहा है, परिंदा ना होते हुए परिंदे से भी बुलंद आसमान में उड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है इंसान के जैसा जिंदगी नहीं गुजार रहा है। ये बहुत आसान है। जैसा कि मैं एक हिंदू भाई से पूछा कि आप किसको भगवान मानते हैं, वो कह दिया कि मैं राम को भगवान मानता हूँ। कि मैं ये पूछा कि राम किसके भगवान है, वो कहा कि हमारा भगवान है। तो हम तमाम लोगों को पैदा करने वाला कितने हैं, वो तो एक ही था। फिर तो एक है बता रहे, फिर राम जी कौन है, वो तो हमारे भगवान है। मैं ये कहा, जैसा कि तुम सुप्रभात हर दिन जो है टेम्पल्स में से सुनते, उसका मतलब मालूम है क्या? वो बताया बिल्कुल नहीं मालूम। अगर सुप्रभात को आप जान ले तो कभी भी जिंदगी में राम को भगवान नहीं माने। जैसा कि सुप्रभात का मतलब ये रामायण में 7 चैप्टर्स में बालखंड में है, वो ये है, कौशल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ आशार्दूला कर्तव्यं दैवमात्मिकम् उत्तिष्ठ 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 गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। जैसे
कि भगवान को पूजा करें जन्नत होने के लिए, लेकिन उस भगवान को पूजा करने के लिए हम जहन्नम में जाना पड़ रहा, सही है, अपनी हक में ये सही है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर में वो हाथ को कबूल किया, अल्लाह अकबर। इसी तरह हम एक गैर मुस्लिम के साथ काफी देर गुफ्तगू हुई, काफी देर गुफ्तगू होने के बाद वो ये कहे मैं सब चीजें मान ले रहा हूँ भाई, लेकिन मैं कलिमा नहीं पढ़ता हूँ। कलिमा तो हमारी किताबों में है, और ये बता हाँ कलिमा भी आपकी किताबों में है, जैसा कि आपके मुक़द्दस तुलसीदास संक्रांत कुरान में लिखते हैं, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ पापिनो की गुजरे नाम मोहम्मद अल्लाहु अकबर। ये कलिमा उसके पास मैं बता दिया, फौरी तौर पर वो कलिमा पढ़ लिया, आज 5 दिन नमाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाह हिदायत दिया। इसी तरह एक गैर मुस्लिम से गुफ्तगू हो रही थी, वो गैर मुस्लिम ये बताएं, देखिए मैं तमाम चीजें मानूंगा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानूंगा। अगर आप हमारी किताबों में नाम के साथ बता दीजिए जब मैं कबूल कर लिया, उस वक्त हमारे पास किताबें नहीं थे, मैं खासकर उसके लिए किताब मंगाया था जो भविष्य कुरान हिंदी में था, तो भविष्य कुरान में वो निकालकर फिर संस्कृत जो है वो उसको बता दिया था। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह है, महाभविष्य कुरान तफसीर 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से लेकर 8 अगर हम देखें वहां पर इस तरह है, एक अस्मिन्नं तलेच्छा आचार्येण समन्विता मुहम्मदं इति ख्याता शिष्यशाखा समन्विता रूपच्छैव महादेवं मधुस्थल निवासिनं। एक अनपढ़ उम्मी उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ आने वाले हैं, उनका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद होगा, ऐ लोगों तुम उन पर ईमान लाओ, अल्लाहु अकबर, ये बता दिया। उसके बाद अब उनके सिफात के ताल्लुक से महाभविष्य कुरान तफसीर 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 25 से लेकर 28 तक देखे, वहां पर इस तरह है, लिंगशेली सिकादीनः संस्कृतानि सदुषकः उच्छलापि सर्ववर्षि भविष्यति जनो मम विना कौलञ्चे शवस्तेषां भक्षामता मम कुशलैनैव संस्कारः कुशैव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो विजातयो धर्मं दुषकः इति पैसा च धर्म च भविष्यति मया कृतः। वो नबी पैदाशी तौर पर खतना किए हुए रहेंगे, सर पर घाटी नहीं रहेगा, दाढ़ी पाले में रहेंगे, बुलंद आवाज से कहेंगे और वो भविष्य की जनों भविष्य में होने वाले बातों को भी बताएंगे। इसी तरह मुसलमान संस्कार, उनका मजहब मुस्लिम होगा, अल्लाहु अकबर। इन तमाम बातें उनके किताबों में भी हम पा सकते हैं। ये बात बताने के बाद अल्लाहु अकबर वो कहना पड़ गया, जैसा कि भाई तारुफ में बताया, जैसा कि कोई से मैं दिल्ली आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर APC इस्लामिक प्रेजेंटेशन कमेटी जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसके जाने से भी हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये बात मालूम हुआ 200 से ज्यादा गैर मुसलमान सिर्फ UIC के सीढ़ी देख के इस्लाम कबूल करे, अल्लाहु अकबर। वहाँ पर पहुँचने के बाद 30 मेंबर 13 लोग इस 17 दिन में अल्लाहु अकबर इस्लाम कबूल करे, और शकीब भाई चंद प्रोग्राम रहने की वजह से वहीं रुके, इंशाअल्लाह 29 फरवरी को वापस आएंगे। मेरे भाइयों, इस तरह कई हजारों लोगों को अल्लाह हिदायत दे रहा, जैसे कि अल्लाह कह रहा है कुरान में सूरह फुरकान 25 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ऐ लोगों जो तुम बुत परस्ती कर रहे हो, तुम्हारे पास अगर दलील है तो तुम लाओ। तुम्हारे पास क्या दलील है? जैसा कि हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, 4 वेदास में कहां पर भी आइडियल वर्शिप बुत परस्ती को हिंदू कौम नहीं बता सकती। और उनके जो साईं बाबा है, उनके किताब में ये लिखा गया है, सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा। ये मौजूदा उनकी किताब में भी आप देख सकते हैं। हम गैर मुस्लिम से ये कह रहे हैं कि साईं बाबा सबका मालिक एक है या सबका मालिक मयूर है, वो बता रहे कि सबका मालिक एक ही है, तो तुम किसकी पूजा कर रहे हो? ये तमाम चीजें बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह का नाम भी उनके किताबों में आप देख सकते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूत्र नंबर 1 मंडल नंबर 11, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूत्र नंबर 1 मंडल नंबर 10, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 27 मंडल नंबर 39 में दीगर मकाम पर अल्लाह का नाम है, और 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम अल्लाह के नाम से, जैसा कि वहां पर इब्तिदाई जो शुरुआत के मंत्र में ये लिखा गया, अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्णम ब्राह्मणम अल्लाह अल्लो महामद रकबरस्य अल्लो अल्लाह। वो अल्लाह ही है सबसे पहला, वो अल्लाह ही सारे कायनात वजूद में लाया, वो अल्लाह पाक है, वो अल्लाह के श्रेष्ठ पैगंबर
with the concept of general studies and Islamic studies. After joining Islamic studies institution, he never looked back. Before joining IPS International, he was worked for two Islamic International schools as a vice principal and principal. Now I welcome Brother Abdul Ghaffar on the stage and request to add more. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable guests, honorees, respected elders, and my brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means may peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. I thank Allah subhanahu wa ta'ala to make me stand before you to deliver a brief message about a unique school which has been established in the city of Hyderabad for the year 2013 and 14. You could see a tagline stating the first school in India. The moment the parents who have received this brochure, they would have got a doubt why this school might be the first school, whereas there have been many schools that have been already started. And when they read the following line, like CBSE along with complete Adam codes, Higgs, and Dawah training program. If you observe, we couldn't listen these kind of sentences or statements during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, or his companions, or Tabi'in, like moral education along with Islamic education. Then how did it happen? During the time, the scholars, they were scholars, even the moral education as well. We could see the scientists, Muslim scientists, Muslim experts, scholars in every field. When the time passes, that education has been divided into two categories, like in 5 different languages. And it comes to, obviously, it's a huge syllabus. First time that we've been listening to that, CBSE, Arabic codes, Higgs, and Dawah training program. So what would the faculty, who would teach them? For CBSE syllabus, the basic criteria that we have put is minimum graduate, experienced, and PhD teachers. Another term, well qualified, experienced, and dedicated faculty for CBSE. And to teach Arabic course, we have a team of ulama, qualified from
Medina University, and Umrah, Nadwa, and so on. And similar way, to teach Dawah training program, we have Da'is who have been successful in their Dawah programs in debates, symposiums, and public meetings with all religious scholars. They will train our kids, and they will train our kids in public speaking skills as well, and soft skills, personal development skills as well. And the unique thing about this school is the object of the school is to give education in lively, healthy, holistic education. The moment we listen to holistic education, development in each and every aspect of children, do you think that the holistic education is required only to your children, only to the student alone, not to the parents, not to the teaching staff, not to the non-teaching staff? IPS International has designed such a training program for all the teaching staff for their enhancement of Islamic knowledge, their communication skills development, and public speaking skills, and the Dawah training program as well. And what about the parents? We have designed you as a parent a regular seminar for the parents where we will educate the parents in different aspects. Don't you think that our parents too be educated? If you observe, the mother is the first teacher of the children. Don't you think that mother must be educated too? So, considering these points, the IPS International has designed a special workshop and seminar for the parents, you as a parent. And if it comes to the teaching methodology, we follow the continuous comprehension evaluation. Evaluation means it is a tool, a scale to measure the performance of the child. And the question arises, when that performance should be measured daily, weekly, monthly, it should be continuously. Okay? The child is understanding what we teach continuously. Third comes whether he is able to understand or not. That talks about comprehension. So we teach in such a way that whatever we teach, the student reciting a verse from the Quran. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah says, oh, you believe, protect yourself and your family members as well. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you are the shepherd of the flock. Allah is going to ask you on their judgment of what is given to you, your family, your kid, and the responsibility given to you. With this I conclude my talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आप जनाब मोहतरम जाने माने प्लीज अब आप इन चार ऑप्शन में से किसका चाहे इंतखाब कर लें। दरमियान में बात खत्म करने से पहले ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इंतजाम में नमाज बाजमात का एहतमाम है। आप लोग इत्मीनान से बैठें। पहला ये है क्योंकि आज के तालीमी दौर में बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस्लाम की कुर्बानी देनी होगी। यानी आप अगर अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस्लाम की कुर्बानी देनी होगी। आप देखिए कॉलेज के आगे में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ये कॉलेज दरअसल नौजवानों के इंजॉय करने का बेहतरीन और महफूज मकाम समझा जाता है। तो अब ऑप्शन आपका है कि अगर आप अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, इस्लाम की कुर्बानी दीजिए। ये पहला ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाइए। होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि माँ बाप अपने बच्चे के घर में
तालीम दे, घर के दरवाजे बंद रखें, बच्चों को बाहर करने ना दें, माहौल जो मुतासिर काम है। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि माँ बाप अच्छे एजुकेटेड हो, ग्रेजुएट हो, हर एम का तजर्बा रखते हों और उसमें एक्सपीरियंस हो। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप अपने बच्चों को किसी अरबी मदरसा में, स्कूल में भेज दें जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरबी या इस्लामी तालीम होती है। ऐसी सूरत में आपका बच्चा जब मार्केट में आएगा तो वो ब्लाइंड माना जाएगा, अंधा माना जाएगा, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहाँ आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर होने के साथ साथ दीन की बुनियादी बातों का इल्म भी रखता हो, इसे मालूम हो कि नमाज के औकात क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, ज़कात का निसाब क्या है, हज कैसे किया जाए। ये चौथा ऑप्शन आपके सामने है। अब आप अगर अच्छे बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, इस्लामी तालीमात को हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चौथे ऑप्शन की तरफ इशारा दूंगा। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं एक नर्सरी क्लास का एक सॉन्ग पढ़कर इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। उस सॉन्ग से आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त जो सेकुलर तालीम है उसके नाम पर हम अपने छोटे बच्चों को 2.5 से 3 साल के बच्चे को क्या तालीम दे रहे हैं। नर्सरी जमात में एक टीचर अपने बच्चों की तालीम देती है। एक सॉन्ग है, बड़ा गंदा सॉन्ग है, बड़ा बेहुदा सॉन्ग है, और हम पेरेंट वो सॉन्ग सुनकर खुश होते हैं और मज़े लेते हैं और कहते हैं माशाअल्लाह हमारी बच्ची इंग्लिश बोलने लगी, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलने लगा। जो लोग इंग्लिश जानते हैं, मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा बेहुदा सॉन्ग है और ये तकरीबन हर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी पावरफुल नहीं है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो। वो सॉन्ग इस तरह है, छप्पी केक डिम्पल चिन, रोजी लिप टिक टिन, curly hair very fair, eyes are blue lovely too, teacher said is that you yes। अब मुझे बताइए कि सॉन्ग से हम अपने बच्चे को क्या मौका देना चाहते हैं, क्या तारीफ देना चाहते हैं। ये बच्ची जो 2.5 साल की है उसे हम किस राह पर ले जाना चाहते हैं, और ये बच्ची बड़ी होगी तो आज आपको मालूम होगा कि जो इस माशरे में जो बुराइयाँ पाई जाती है उसकी बेसिक वजह ये है कि हम बेसिक जो तालीम देते हैं उसी तालीम से अपने बच्चों को देते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सही रहनुमाई फरमाए। और जो 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इख्तियार आपका है कि आप चाहें तो किसी सेकुलर एजुकेशन स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, या जो 4 ऑप्शन तो आपके सामने हैं। अब ये बॉल आपके कोर्ट में है, आप जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही स्कूल के इंतखाब की तौफीक फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मा जनाब अहमद शुक्र सहारा हमारे यहाँ जमा होने और सुनने सुनाने को कबूल करे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तरक्की में, कौमों की तारीख में जो अहम तरीन बात है, कुरान में ये कहता है कि अगर कौम तुम झाड़ बन के रहना चाहो तो उड़ जाओगे, अगर तुम इंसानियत के लिए फायदामंद हो तो जमीन में रुकोगे और
मुबारक अल्लाह खान। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और फिक्र के जरिए से हम हासिल करें। ऐसे स्कूल तो हमारे पास जो ये नहीं कि बस कुछ पहाड़े हटा दें, एक पर काफुल बता दें और कुछ बातें एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके अच्छे 99% मार्क्स ला लें। गुज़िश्ता 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर दिया जाए तो परफेक्ट कर दिया जाए तो आजकल 10th क्लास में बच्चे 90% मार्क्स ला लेते हैं। ऐसे एजुकेशन बहुत हैं, लेकिन IPS अगर ऐसे एजुकेशन की इंतजार करे जिसके जरिए से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और फिक्र के जरिए से बच्चों को तालीम दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। जनाब इधर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो रफीक मदनी हफिज़हुल्लाह को मैं जनाब शफूर साहब से गुजारिश दावती काम अंजाम दे रहे हैं। आप सहाबी मज़ाहिब पर महारत रखते हैं। आपने कई डिबेट, सिम्पोजियम और तकारीर किए हैं। मैं दावत सुपन देता हूँ कि वो आज के इस मौजू पर हम सामाईन को खिताब करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने IPS इंटरनेशनल, इस्लामिक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल जैसे एक अजीम मकसद वाला स्कूल उसमें एक हिस्सा बनने का और उसके अंदर UIRC यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर के तहत दावती शोबे में सपोर्ट करने का मौका हम UIRC की टीम को इनायत फरमाया। मैं इसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज पे तशरीफ फरमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन गोयल साहब, ऑनरेबल MP साहब और दीगर उलेमाए कराम और आज के इस जलसे में शामिल बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे इस्लामी नौजवानों, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने IPS के इन्विटेशन पे लब्बैक कहा और यहाँ अपने कीमती वक्त को दिया। उलेमा कराम को अपने बयान को सामने रखे हैं आपके सामने और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं कुछ बातें आज के इस मौजू पर कि आज मौजूदा हालात में मुस्लिम उम्मत के सामने जो इल्मी मैदान में दरपेश चैलेंजेस है इसके मुताबिक बातें रखना चाह रहा था और कुछ अपीलें यहाँ पे करना चाह रहा था। तो मैं मुख्तसर चंद बातों को अपील करके मैं ऐसा खुशखबरी और एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाए और आपसे दुआओं की उम्मीद रखता हूँ प्रेजेंटेशन के बाद इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि हर खुतबे में, हर जलसे में, हर इज्तिमा में हम सुनते हैं कि इस्लाम में इल्म की अहमियत कैसी है। दीगर मज़ाहिब के जैसे कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, बुद्धाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जितने भी दुनिया के दीगर मज़ाहिब हैं उन सबसे बढ़कर दीन इस्लाम में इल्म की अहमियत। अगर आप देखते जाएंगे तो कुरान मजीद का सबसे पहला आयत
जो सबसे पहला लफ्ज जो नाज़िल हुआ इक़रा पढ़ो, और अहादीस मुबारका में भी इल्म को फर्ज करार दिया गया है। इमाम तबरानी हदीस को लाए हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, हर मुस्लिम के ऊपर इल्म का सीखना लाज़िम है, फर्ज है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप बुखारी शरीफ में जब इल्म का बाब आता था, बाबुल इल्मी कौलल कौली वल अमली, अमल से पहले, कौल से पहले, बात करने से पहले, अमल करने से पहले इल्म को सीखो, बाबुल इल्मी पहले काम। और इससे बढ़कर इस बात की तारीफ हमें इस एग्जाम्पल में मिलता है कि जितने अंबिया और सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुजर चुके हैं, उनको मौजूदात दिए गए थे, किसी को समुद्र को चाक करने का, मुर्दों को जिंदा करने का, बड़े से बड़े मौजूदात अंबिया और सलाम करे थे। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजूदा दिया गया वो कुरान मजीद, दुनिया की सबसे बेहतरीन इल्म देने वाली किताब, ये मौजूदा देके भेजा है। तो इसीलिए इस उम्मत को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खैर उम्मा के लक़ब से नवाज दिया, क्योंकि ऐसे इल्मी मौजूदे को आने वाले क़यामत के दिन तक जितने लोग आने वाले हैं उनके सामने पेश करने का शर्त सिर्फ इस उम्मत को ये चांस दिया गया है। लेकिन इस चांस को अपनाने में, इसको हासिल करके आगे बढ़ जाने में और दुनिया की लीडरशिप को अपने पास कायम रखने में ये उम्मत बुरी तरह फेल होगी। इसकी वजह है कि जो चैलेंजेस जो इल्मी मैदान में पेश आने वाले हैं, आ रहे हैं, उससे ये उम्मत दाखिल होने की वजह है। इस जो आज के हाल में और बाहर जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्तों और गया से भी जो मेरे भाई हाजिर है, कोशिश नहीं रखता वो आगे बढ़ के दुनिया के मसाइल के लिए और टेक्नोलॉजी के तरक्की के लिए इंसान को रिसर्च करने के ऊपर उभारता है। ये एक ही ऐसा कलाम है जो कुरान मजीद है, उसके बावजूद आज टेक्नोलॉजी में रिसर्च का पीछे। इसकी वजह यह है कि जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है, इसका सामना हम नहीं कर सकते। सेक्युलर आइडियोलॉजी वो है जो आज दुनिया में छा चुका है। जिस स्कूल में भी हम बच्चे को भेजते हैं, आज बेहतरीन से बेहतरीन उलेमा है, लोगों को दुरुस्त देते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं, भलाई की तालीम देते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक उलेमा है जो हमारे मशहूर उलेमा है, के नाम में बोलना नहीं चाहता हूँ, दुनिया में इल्म के साथ में दीन को इल्म को दे, क्योंकि नियत अगर हमारा ये है कि दीन इस्लाम को कायम करने के लिए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए हम दुनिया का इल्म हासिल करेंगे, उसके से भी लोगों को साइंस भी सीखेंगे कि लोगों को इस्लाम का हक मनवाए, कुरान का हक मनवाए, तो वो भी इल्म नाफे में शामिल होता है। उससे भी इंसान का दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी उसकी बन जाती है। आज सहाबा इकराम जो ईमान रखते थे, उनकी तालीम हकीकत में अपनी थी। इसीलिए जब जंगे बदर के मैदान में सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया कि क्या किया जाए, इतनी बड़ी फौज आगे खड़ी है, तो आपने कहा कि हम इस्राएल के जैसे जवाब दे देंगे, बनी इस्राएल के जैसा आप और आपके अल्लाह लड़ो, आपके साथ हम अपने जान को, अपने माल को कुर्बान कर देंगे, और आपके साथ आप भी लड़िए, आपका अल्लाह भी लड़े और हम भी आपके साथ लड़े। ये सहाबा ने जवाब दिया। उसके बाद में साथ में मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अंसारी की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने भी जवाब दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको समुद्र के बीच में ले जाते, बीचों बीच जहाँ पे डूबने का भी खतरा है, तो हम वहाँ तक भी आपको फॉलो करेंगे, और उसके आगे आप दुनिया के किसी किनारे तक हमको ले जाए, हम लड़ते लड़ाते वहाँ तक चले जाएंगे, और यहाँ तक कि आपके आंखें हमारे इस मजबूत ईमान से, इस मजबूत मुकाबले से दुश्मनों के ठंडे हो जाए, हमारे जानों को हम कुर्बान कर देंगे। ये जवाब दिए थे। आज उम्मत इसी का मुताला कर रही है। आज उम्मत के ऊपर इसी का मुताला है कि दीन के लिए नौजवान और अपने माए बहने और बच्चे बड़े सब हम खड़े हो जाए और उस फरीज़े को अदा करने के लिए खड़े हो जाए, जिस फरीज़े का गैर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमको इस्लाम की दावत को पेश करे और उसको कबूल करे।
Society Act 2001, registration number 1261/2007 in India. UIRC is located at Amber, Hyderabad, India. Primary objectives of UIRC are to conduct Islamic events, symposiums, and debates in Telugu language, focused at the approximate 94 Telugu populates, to invite non-Muslims to the beautiful faith of Islam. 70 core members of UIRC are Brother Shafi, who is president of UIRC and has been student of comparative religious study. He specialized in the subjects of Islam and Christianity. Brother Shafi earned masters in medical and psychiatric social work from
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان عندنا تشريف معنا صدر UI RC سراج الرحمان صاحب سیکرٹری UI RC ریاض احمد صاحب وائس سیکرٹری جناب محمد رضا صاحب وائس پریزیڈنٹ جناب شیخ رفیق مدنی صاحب ریاض احمد صاحب اور دیگر معزز حاضرین اکرام علماء اکرام میں سب سے پہلے IPS انٹرنیشنل مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایک بہترین اسکول قیام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو آج اہم بنیادی چیزوں کی طرف یہ اسکول توجہ دے گا وہ ہے البر تقویٰ امانہ حکمت عدل قیادت اور اقامت الدین الحمدللہ یہ اسکول کا احساس ہوگا جس پر اسکول قائم کیا جا رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس میں مقاصد میں کامیابی دے اور یقیناً اس طرح کے اسکولس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے حالیہ دنوں میں حکومت ہند کی طرف سے نیشنل سیمپل سروے کیا جاتا ہے 2009 اور 10 کا یہ سب سے لیٹسٹ نیشنل سیمپل سروے ہے اس میں بات سامنے آئی کہ لٹریسی لیول میں خواتین میں سب سے کم جس کا موقع ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور ہمارا لٹریسی پرسنٹیج دلتوں سے شیڈیولڈ ٹرائب سے بیکورڈ کلاس ہندو سے اپر کلاس ہندو سے اور دیگر اقلیتوں سے ہمارا کم ہے یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے پھر اسی نیشنل سیمپل سروے میں یہ بھی کہا گیا یعنی بات سامنے آئی کہ میٹریکولیشن یعنی 10ویں جماعت میں سب سے کم 10ویں جماعت پاس کرنے والے مسلمان اور تکلیف بات یہ ہے ہم تمام کے لیے کہ دیگر قوموں کا جو SSC کا پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ ہوا چاہے وہ بیکورڈ کلاس ہندو ہو اپر کلاس ہندو ہو دیگر اقلیتیں ہو یا پھر SC ST کے ہمارے بھائی اور ہمارا جو پرسنٹیج ہے وہ اس سے کم ہے اگر ہم ہائر ایجوکیشن پر جائیں گے تو یہ حیرت انگیز اس میں نیشنل سیمپل سروے میں آیا کہ مسلمانوں میں 1.5% کا ڈکلائن ہوا یعنی مائنس گروتھ اور دیگر قوموں میں قریب 5 سے 9% میں اضافہ ہوا تو یہ اگر ہم نیشنل سیمپل سروے کو سامنے رکھیں گے یہ بات خود ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کو اور اسکول کھولنے کی ضرورت ہے الحمدللہ جب جہاں پر اسکول کھول رہے تو ان 3 اسکولوں میں جو تعلیمی نصاب ہے اس میں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ صحیح کہا بھی محترم نے کہ یہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن تمام معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے چاہے اس کو آپ کٹ تھروٹ کہیں یا ریٹ ریس کہیں یہ ایک قسم سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح کسی کو لیڈر بنا دے یا ڈاکٹر بنا دے اچھی چیز ہے ڈاکٹر بننا چاہیے انجینئر بننا چاہیے قانون کی ڈگری حاصل کرنا چاہیے مگر ہم دیکھتے چاہیں کہ بہت سے لوگ اسکولوں میں اچھے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر یا تو ان میں مورلس کا فقدان ہوتا ہے یا پھر وہ بالکل مذہب سے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں ہمارے سے معلوم ہی نہیں دین کے بارے میں یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی کو مورلس نہیں معلوم کسی کو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم مگر ماں باپ اگر اس بات پر پکڑ کریں کہ نہیں میرا بچہ جو ہے 80% آیا 90% آ گیا
मैं समझता हूँ कि अगर वो 60% आता है और वो बचपन का नवाजी है और उसमें अखलाक है, मॉरल्स है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आए दिन लोग किस तरह के जराइम कर रहे हैं। आज आप बताइए कि दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची की इज्जत उठाई की कौन सी इंसानियत? ये तो हैवानियत है। और ये ऐसे काम, ऐसे जराइम हमारे माशरे में हो रहे हैं कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ये बच्चे कर रहे हैं। ये बहुत अहम है कि जो कि खास के ऊपर जो मकासद के तहत IPS स्कूल फाइल किया जा रहा है, ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी मदद करे। और ये बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के स्कूल बने जिसमें ना सिर्फ असली तालीम बेहतरीन तरीके से की जाए, बल्कि दीन के जो अहम बेसिक तालीमात है वो भी बच्चों को बताया जाए ताकि वो एक बेहतरीन इंसान बने। और जहाँ तक असली तालीम की बात है, आज से 3 साल पहले एक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री वफद को एक डेलीगेशन को जिसमें 8 या 9 MPs थे, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग हमको ये यूनिवर्सिटी जो दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी जो उसका शुमार होता है अमेरिका में, ये यूनिवर्सिटी जाया गया। और वहाँ पर एक आखिरी सेशन था तालीम के ऊपर, तो उसमें कई हमारे सामने डेटा को सामने दिया गया। तो उसमें ये भी डेटा सामने आया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा PhD कौन लोग करते हैं। तो उसमें करीब 20 ममालिक के नाम। और आपको जानकर अफसोस होगा कि इन 20 ममालिक में एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं, एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं। सबसे ज़्यादा जो PhD आज हासिल कर रहे सारी दुनिया में वो चाइना के लोग 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में PhD डिग्री हासिल कर। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूरोप के ममालिक है। हिंदुस्तान 20वें भी नहीं आता उसके बाद। यही चीज़ आप देखें कि आज अल्लाह ने हमारे मुस्लिम मालिकों को बेहतरीन दौलत नवाजा, उनके पास बहुत दौलत है, मगर एक असली तालीम की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की हम बता कर नहीं करते कि हाँ ये यूनिवर्सिटी हमारे पास है। अब सऊदी अरब में जाकर वहाँ के बादशाह ने जिद्दा में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे हमको इसकी तालीम की। जबकि अगर हम तारीख का हर बार मुकाबला करेंगे तो दुनिया में सब जितने ईजादी हुई, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, वो तमाम के तमाम हमारे मुस्लिम फिलासफर्स ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने किया। और जितने वो मुस्लिम जो मुसलमान फिलासफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, तो वहीं पर वो दीन के आलिम भी थे, यानी वो मुहद्दिस थे, यानी बेहतरीन मुहद्दिस थे, बेहतरीन खाली थे, हाफिज़ कुरान के साथ ही साथ बेहतरीन फिलासफर थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो गोल्डन इरा को उसको रिवाइव करें। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्कूल अगर इन एक मकासद को लेकर आगे बढ़ेंगे, यकीनन न सिर्फ हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे बल्कि उनको अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं फिर से अपनी जानिब से IPS के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं अपने खास हैं कि वो जो एक मकसद के तहत और जो दीगर उनकी एक्टिविटी है कि दावा का नाम करना, अखबारों में जाकर दीन इस्लाम की तालीमात उनको बताना, ये भी बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके इस नेक काम को कबूल करे और उस तरफ से राह फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। हदीस का इल्म हासिल किया। जनाब मोहतरम 8 साल से दावती काम अंजाम दे रहे हैं। आपने 200 से ज़्यादा तकारीर की हैं और कई दीगर मज़ाहिब के स्कॉलर से डिबेट, डायलॉग और सिम्पोजियम में भी हिस्सा लिया है और हज़ारों गैर मुस्लिमीन को खिताब फरमाया है। 2007 में औक़ाफ़ दुबई की जानिब से आपने दुबई का दौरा किया और 2012 में सऊदी अरब का दौरा किया और 2013 में कोई अभी आप उस दौरे से
तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह 13 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं दावत सुकून देता हूँ, जनाब मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि वो आज के उन्वान पर हम तमाम सामाईन को खिताब फरमाएं। जनाब सिराजुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दायित्व पर तशरीफ फरमा तमाम मेहमानाने खुसूसी और इस जलसे में तशरीफ फरमा तमाम नौजवान भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आप तमाम लोगों को मैं इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस्लाम जैसे अजीम नियामत से नवाजा। मेरे भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, तमाम हाज़िरीन, IPS इंटरनेशनल स्कूल के इफ्तिताही तकरीबी जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जमा हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद आप तमाम लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाइयों, जैसा कि इस मौके पर IPS इंटरनेशनल स्कूल इफ्तिताही मौके पर एक सेमिनार इंतजाम किया गया, वो ये है कि आज के तालीमी जमाने में मुस्लिम उम्मत को दरपेश सवालात का सामना किस तरह किया जाए। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, ये एक ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जैसा कि इंटरनेट का दुनिया है, टीवी, नेटवर्किंग, हाई स्पीड मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के जरिए से इंसान बहुत कुछ फायदा हासिल किया है, लेकिन इसी तरह हमारे समाज में बुराइयां भी फैल रहे हैं। जिस तरह आज हमारे समाज को हम गौर फिक्र करें तो आज से पहले जो इंसान 200 साल पहले किसी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज हर किस्म का टेक्नोलॉजी, ये आराम की जिंदगी रहने के बावजूद इंसान नाशुक्र और जो है इसको अमन नहीं रहा है। मेरे भाई, जैसा कि आज इंसान मछली ना होते हुए भी मछली से भी ज्यादा समुद्र में तीर सक रहा है, परिंदा ना होते हुए परिंदे से भी बुलंद आसमान में उड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है इंसान के जैसा जिंदगी नहीं गुजार रहा है। ये बहुत आसान है। जैसा कि मैं हिंदू भाई से पूछा कि आप किसको भगवान मानते हैं, वो कह दिया कि मैं राम को भगवान मानता हूँ। कि मैं ये पूछा कि राम किसका भगवान है, वो कहा कि हमारा भगवान है। तो हम तमाम लोगों को पैदा करने वाला कितने हैं, वो तो एक ही था। फिर तो एक है, बता दे फिर राम जी कौन है, वो तो हमारे भगवान है। मैं ये कहा, जैसा कि तुम सुप्रभात हर दिन जो है टेम्पल्स में से सुनते, उसका मतलब मालूम है क्या? वो बताया बिल्कुल नहीं मालूम। अगर सुप्रभात को आप जान ले तो कभी भी जिंदगी में राम को आप भगवान नहीं माने। जैसा कि सुप्रभात का मतलब ये रामायण में 7 चैप्टर में बालखंड में है, वो ये है कौशल्या सुप्रजाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ शार्दूला कर्तव्यं दैवमात्मिकम् उत्तिष्ठ 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 गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। जैसे कि हर दिन सवेरा जो है टेम्पल में से जो है एलुशन की इस आवाज को सुन सकते। ये पढ़ के सुनाया तो हैरान हो गया, इसका मतलब आपको मालूम है क्या? मैं इससे ये कहा था, आप इसका मतलब बता दो, 1000 रुपये नेट कैश आपको दूंगा। तो और थोड़ा मुतासिर हो गया, मैं नहीं बता सकता। तो मैं पूछा, मैं बताया तो आप दीजिए, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, मैं फ्री में बता देता हूँ, आप सुन लो। वो ये है कौशल्या सुप्रजारामा, कौशल्या के नेक बालक राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, सूर्य तुलु होने का वक्त हो रहा है। उत्तिष्ठा, नींद से जागो, नरशार्दूला, इंसानों में शेर जैसे हो, कर्तव्यं दैवमात्मिकम्, उस खुदा की बंदगी करना तुम्हारा जिंदगी का मकसद है। मैं ये बताने के बाद इतना परेशान हो गया, मैं ये बताया राम जी दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह की बंदगी करना। अब बताओ किसकी बात करे? वो परेशान होकर देखना लगा और उसके बाद मैं ये बताया, देख
के बाद पूरे पसीने आना लगे और इतना हैरान के साथ होगा। देखिए हम जिसकी भगवान को पूजा कर रहे जन्नत होने के लिए, लेकिन उस भगवान को पूजा करने के लिए हम जहन्नम में जाना पड़ रहा। सही है, हकीकत में ये सही है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर में वो हाथ को खोल किया, अल्लाह अकबर। इसी तरह हम एक गैर मुस्लिम के साथ काफी देर गुफ्तगू हुई, काफी देर गुफ्तगू होने के बाद वो ये कहे मैं सब चीजें मान ले रहा हूँ भाई, लेकिन मैं कलिमा नहीं पढ़ता हूँ। कलिमा तो हमारी किताबों में है। और ये बता हाँ, कलिमा भी आपकी किताबों में है, जैसा कि आपके मुक़द्दस तुलसीदास संक्रांत कुरान में लिखते हैं, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमपदम जन्म वैकुंठ पापिनो की गुजरे नाम मोहम्मद अल्लाहु अकबर। ये कलिमा उसके पास मैं बता दिया, फौरी तौर पर वो कलिमा पढ़ लिया। आज 5 दिन नमाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाह हिदायत दिया। इसी तरह एक गैर मुस्लिम से गुफ्तगू हो रही थी, वो गैर मुस्लिम ये बताए, देखिए मैं तमाम चीजें मानूंगा लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानूंगा। अगर आप हमारे किताबों में नाम के साथ बता दीजिए, जब मैं भूल गया उस वक्त हमारे पास किताबें नहीं थे। मैं खासकर उसके लिए किताब मंगाया था जो भविष्य कुरान हिंदी में था, तो भविष्य कुरान में वो निकालकर फिर संस्कृत जो है वो उसको बता दिया था। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह है, महाभविष्य कुरान तफसीर 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से लेकर 8 अगर हम देखें, वहां पर इस तरह है, एक अस्मिन्नं तलेच्छा आचार्येण समन्विता मुहम्मदं इति ख्याता शिष्यशाखा समन्विता रूपच्छैव महादेवं मरुस्थल निवासिनं। एक अनपढ़ उम्मी उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ आने वाले हैं, उनका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद होगा। ऐ लोगों तुम उन पर ईमान लाओ, अल्लाहु अकबर, ये बता दिया। उसके बाद अब उनके सिफात के ताल्लुक से महाभविष्य कुरान तफसीर 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 25 से लेकर 28 तक देखे, वहां पर इस तरह है, लिंगशेली सिकाहीनः संस्कृतानि सदुषकः उच्छलापि सर्ववर्षि भविष्यति जनो मम विना कौलञ्चे शवस्तेषां भक्षामता मम कुशलैनैव संस्कारः कुशैव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो विजातयो धर्मदूषकः इति पैसा च धर्म च भविष्यति मया कृतः। वो नबी पैदाशी तौर पर खतना किए हुए रहेंगे, सर पर घाटी नहीं रहेगा, दाढ़ी पाले में रहेंगे, बुलंद आवाज से कहेंगे और वो भविष्य की जनों भविष्य में होने वाले बातों को भी बताएंगे। इसी तरह मुसलमान संस्कार, उनका मजहब मुस्लिम होगा, अल्लाहु अकबर। इन तमाम बातें उनके किताबों में भी हम पा सकते हैं। ये बात बताने के बाद अल्लाहु अकबर वो कलमा पढ़ लिया। जैसा कि भाई तारुफ में बता रहे, जैसा कि कोई से मैं दिल्ली आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर APC इस्लामिक प्रेजेंटेशन कमेटी जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसके जाने से भी हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये बात मालूम हुआ 200 से ज्यादा गैर मुसलमान सिर्फ URC के सीढ़ी देख के इस्लाम कबूल करे। अल्लाहु अकबर, वहाँ पर पहुँचने के बाद 13 लोग इस 17 दिन में अल्लाहु अकबर इस्लाम कबूल करे। और शकीब भाई चंद प्रोग्राम रहने की वजह से वहीं रुके, इंशाअल्लाह उनके दिन को वापस आएंगे। मेरे भाइयों, इस तरह कई हजारों लोगों को अल्लाह हिदायत दे रहा, जैसे कि अल्लाह कह रहा है कुरान में सूरह फुरकान 25 में अल्लाह फरमाते हैं, कुल आतू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों जो तुम बुत परस्ती कर रहे हो, तुम्हारे पास अगर दलील है तो तुम लाओ। तुम्हारे पास क्या दलील है? जैसा कि हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, 4 वेदास में कहां पर भी आइडियल वर्शिप बुत परस्ती को हिंदू कौम नहीं बता सकती। और उनके जो साईं बाबा है, उनके किताब में ये लिखा गया है, सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा। ये मौजूदा उनकी किताब में भी आप देख सकते हैं। हम गैर मुस्लिम से ये कह रहे हैं कि साईं बाबा सबका मालिक एक है या सबका मालिक मैं हूं है, वो बता रहे कि सबका मालिक एक ही है, तो तुम किसकी पूजा कर रहे हो? ये तमाम चीजें बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह का नाम भी उनके किताबों में आप देख सकते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूत्र नंबर 1 मंडल नंबर 11, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूत्र नंबर 1 मंडल नंबर 10, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूत्र नंबर 27 मंडल नंबर 39 में दीगर मकाम पर अल्लाह का नाम है। और 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम अल्लाह के नाम से, जैसा कि वहां पर इब्तिदाई जो शुरुआत के मंत्र में ये लिखा गया, अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्णम ब्राह्मणम अल्लाह अल्लो महामदा रगवरस्य अल्लो अल्लाह। वो अल्लाह ही है सबसे पहला, वो अल्लाह ही सारे कायनात वजूद में लाया, वो अल्लाह पाक है, वो अल्लाह के श्रेष्ठ पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह कई बेशुमार दलाइल उन किताबों में हम देख सकते हैं। जैसा कि मेरे भाइयों, जो आज के सेमिनार का जो उन्वान था
Studies and Islamic Studies. After joining Islamic Studies institution, he never took back. Before joining IPS International, he was worked for two Islamic International Schools as a vice principal and principal. Now I welcome Brother Abdul Ghaffar on the stage and request to add more. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable guests, honorees, respected elders, and my brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which means may peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. I thank Allah subhanahu wa ta'ala to make me stand before you to deliver a brief message about a unique school which has been established in the city of Hyderabad for the year 2013 and 14. You could see a tagline stating the first school in India. The moment the parents who have received this brochure, they would have got a doubt why this school might be the first school, whereas there have been many schools that have been already started. And when they read the following line, like CBSE along with complete Alim codes, HIPS, and Dawah training program. If you observe, we couldn't listen these kind of sentences or statements during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, or his companions, or tabi'in, like Islamic education along with Islamic education. Then how did it happen? During the time, the scholars, they were scholars even the modern education as well. You could see the scientists, Muslim scientists, Muslim experts, scholars in every field. When the time passes, that education has been divided into two categories, like in 5 different languages. And it comes to, obviously, it's a such huge syllabus. First time that we've been listening to that, CBSE, Alim codes, HIPS, and Dawah training program. So what would the faculty, who would teach them? For CBSE syllabus, the basic criteria that we have put is minimum graduate, experienced, and B.Ed teachers. Another term, well qualified, experienced, and dedicated faculty for CBSE. And to teach Alim codes, we have a team of ulama, qualified from Medina University,
and Umrah, Nadwa, and so on. And similar way, to teach Dawah training program, we have Da'is who have been successful in their Dawah programs in debates, symposiums, and public meetings with all religious scholars. They will train our kids, and they will train our kids in public speaking skills as well, and soft skills, personal development skills as well. And the unique thing about this school is the object of the school is to give education in lively, healthy, holistic education. The moment we listen to holistic education, development in each and every aspect of children, do you think that the holistic education is required only to your children, only to the student alone, not to the parents, not to the teaching staff, not to the non-teaching staff? IPS International has designed such a training program for all the teaching staff, for their enhancement of Islamic knowledge, their communication skills development, and public speaking skills, and the Dawah training program as well. And what about the parents? We have designed you as a parent a regular seminar for the parents where we will educate the parents in different aspects. Don't you think that our parents too be educated? If you observe, the mother is the first teacher of the children. Don't you think that mother must be educated too? So, considering these points, the IPS International has designed a special workshop and seminar for the parents, you as a parent. And if it comes to the teaching methodology, we follow the continuous comprehension evaluation. Evaluation means it is a tool, a scale to measure the performance of the child. And the question arises, will that performance should be measured daily, weekly, monthly? It should be continuously. Okay? The child is understanding what we teach continuously. Third comes whether he is able to understand or not. That talks about comprehension. So we teach in such a way that whatever we teach, the student understanding a verse from the Quran. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu says, oh, you believe, protect yourself and your family members as well. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you are the shepherd of the flock. Allah is going to ask you on their judgment of what is given to you, your family, your kid, and the responsibility given to you. With this, I conclude my talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अब आप इन 4 ऑप्शन में से किसका चाहे इंतखाब कर लें। दरमियान में बात खत्म करने से पहले ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इंतजाम में नमाज बाजमात का एहतमाम है। आप लोग इत्मीनान से बैठें। पहला ये है, क्योंकि आज के तालीमी दौर में बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस्लाम की कुर्बानी देनी होगी। यानी आप अगर अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इस्लाम की कुर्बानी देनी होगी। आप देखिए, कॉलेज के आगे में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ये कॉलेज दरअसल नौजवानों के इंजॉय करने का बेहतरीन और महफूज मकाम बन जाता है। तो अब ऑप्शन आपका है कि अगर आप अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, इस्लाम की कुर्बानी दे दीजिए। ये पहला ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाइए। होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि माँ बाप अपने बच्चे की घर में तालीम दे
घर के दरवाजे बंद रखें, बच्चों को बाहर करने ना दें, माहौल जो मुतासिर ना हो। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि माँ बाप अच्छे एजुकेटेड हो, ग्रेजुएट हो, हर एम का तजर्बा रखते हों और उसमें एक्सपीरियंस हो। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप अपने बच्चों को किसी अरबी मदरसा में, स्कूल में भेज दें जहाँ सिर्फ और सिर्फ अरबी या इस्लामी तालीम होती है। ऐसी सूरत में आपका बच्चा जब मार्केट में आएगा तो ब्लाइंड माना जाएगा, अंधा माना जाएगा, उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। और चौथा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहाँ आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर होने के साथ साथ दीन की बुनियादी बातों का इल्म भी रखता हो। इसे मालूम हो कि नमाज के औकात क्या है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, ज़कात का निज़ाम क्या है, हज कैसे किया जाए। ये चौथा ऑप्शन आपके सामने है। अब आप अगर अच्छे बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, इस्लामी तालीमात को हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चौथे ऑप्शन की तरफ इशारा दूंगा। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं एक नर्सरी क्लास का एक सॉन्ग पढ़कर इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। उस सॉन्ग से आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त जो सेकुलर तालीम है उसके नाम पर अपने छोटे बच्चों को 2.5 से 3 साल के बच्चे को क्या तालीम दे रहे हैं। नर्सरी जमात में एक टीचर अपने बच्चों की तालीम देती है। एक सॉन्ग है, बड़ा गंदा सॉन्ग है, बड़ा बेहुदा सॉन्ग है, और हम पेरेंट वो सॉन्ग सुनकर खुश होते हैं और मज़े लेते हैं और कहते हैं माशाअल्लाह हमारी बच्ची इंग्लिश बोलने लगी, हमारा बच्चा इंग्लिश बोलने लगा। जो लोग इंग्लिश जानते हैं, मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा बेहुदा सॉन्ग है और ये तकरीबन हर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी पावरफुल नहीं है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो। वो सॉन्ग इस तरह है, चप्पी केक डिम्पल चिन, रोजी लिप टिप टिन, curly hair very fat, eyes are blue lovely too, teacher said is that you yes। अब मुझे बताइए कि सॉन्ग से हम अपने बच्चे को क्या मौका देना चाहते हैं, क्या तारीफ देना चाहते हैं। ये बच्ची जब 2.5 साल की है उसे हम किस राह पर ले जाना चाहते हैं, और ये बच्ची बड़ी होगी तो आज आपको मालूम होगा कि जो इस माशरे में जो बुराइयाँ पाई जाती है उसकी बेसिक वजह ये है कि हम बेसिक जो तालीम देते हैं उसी तालीम से अपने बच्चों को देते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सही रहनुमाई फरमाए। और जो 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इख्तियार आपका है कि आप चाहें तो किसी सेकुलर एजुकेशन स्कूल में बच्चे कर